اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی کوششیں، میاں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ملاقات، حکومت کی میاں نواز شریف کو واپس لانے کی تیاریاں، سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو فوراً وطن واپس لانا چاہیے، وزیراعظم کی کابینہ اجلاس میں ہدایت۔ کیا حکومت میاں نواز شریف کو لندن سے وطن واپس لا سکے گی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف کمل شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما سسی پلیجو سے۔ And a very warm welcome to the show. ایک وقت تھا جب میاں نواز شریف کی لندن روانگی حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی اور اب ان کی واپسی بھی ایک بڑا سیاسی معاملہ بن چکی ہے۔ حکومت نے خود انہیں باہر جانے کی اجازت دی اور اب بقول وزیر ریلوے شیخ رشید وزیر اعظم پچھتا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ کی رپورٹس کو خود وفاقی وزراء جعلی قرار دے رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایکشن لیں اس کے اوپر۔ کافی مضحکہ خیز بیانات بھی آ رہے ہیں جہاں پر کبھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیکل ایکسپرٹیز کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے، تو کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لیب رپورٹس ہی صحیح نہیں بنائی گئیں۔ مختلف صفائیاں حکومت پیش کر رہی ہے، مختلف الزامات خود ہی حکومت لگا رہی ہے۔ آج کیبنٹ اجلاس میں پھر یہ معاملہ زیر بحث آیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی نیب میں پیشی کے دوران ہنگامہ آرائی پر بھی وزراء نے ان کو گرفتار نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کیبنٹ اجلاس کے اندر کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ اجلاس کے دوران پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو فوراً وطن واپس لانا چاہیے، تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے، کسی بھی قسم کی کوئی بلیک میلنگ وہ برداشت نہیں کریں گے۔ نواز شریف کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے، احتساب کا عمل جاری رہے گا، کوئی NRO نہیں ہوگا۔ بڑے دنوں کے بعد پرائم منسٹر نے یہ بات دوبارہ کی ہے، ہم نے سنی بڑے دنوں کے بعد۔ نواز شریف سمیت ہر ملزم کو احتساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا کہ مریم نواز کی جو گرفتاری نہیں ہوئی اس دن، اس پر ان کو تشویش ہے۔ مریم نواز نے نیب کے باہر جو کیا اس پر انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، یہ ان کی سجیشن تھی یا ان کا اوپینین تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے کل کے پارلیمنٹ میں کہے گئے نازیبا الفاظ پر بھی وزراء نے برہمی کا اظہار کیا۔ کیبنٹ اجلاس کی اس ساری بحث سے اب یہ صاف ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے بعد اب انہیں واپس لانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ تگ و دو شروع ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون اس پر سخت برہم ہے۔ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی پر ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا گیا ہے، مگر حکومت معاشی بحران کی ساری ذمہ داری پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر ڈال رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اطلاع شبلی فراز نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، لیٹس واچ ہم۔ ان کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جتنا مال بنا سکتے ہو اتنا بناؤ، اور اس ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو استعمال کیا، ہر ادارے کو کمزور کیا تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ کیبنٹ میں چھائے ہوئے تھے آپ لوگوں کا ذکر، آپ نہیں تھے تو ذکر ضرور تھا آپ کا، کیوں اتنی پریشانی میں ڈال دیا آپ نے حکومت کو؟ بتا دیں کب آنا ہے میاں صاحب نے واپس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے فریہ بات یہ ہے کہ کابینہ کا جو اجلاس ہوتا ہے ظاہر ایک ہائیسٹ فورم ہوتا ہے، اور اس میں ملک کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اور عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بڑے کی ڈیسیژنز کیے جاتے ہیں۔ آپ کیبنٹ کے اجلاس کی جو مختصر سی آپ نے خاکہ پیش کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ کی جو سمت ہے وہ کس طرف ہے۔ کیا یہ ایشو وہاں پہ آج ڈسکس ہوا ہے کہ پچھلے دور حکومت جس کو کوستے آپ کے، میں یہ کہوں گا کہ وزن آدھے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے، میں وزراء کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں اگر آٹے کا ایک تھیلا جو ہے وہ 550 کا تھا تو آج وہ 1300 روپے کا کیوں مل رہا ہے؟ چینی اگر 55 روپے کی تھی تو آج وہ 110 روپے کلو کیوں مل رہی ہے؟ بڑے بڑے سکینڈلز آپ کی حکومت میں آئے، اس کے بارے میں کسی نے بات کی؟ بالکل نہیں کی۔ بجلی گیس کے بل کہاں پہنچ گئے؟ کبھی یہ کہا گیا کہ اضافی بل ہیں ہم اس کو واپس بھی کریں گے، لوگوں کو پیسے واپس دیں گے، آج تک کچھ نہیں ہوا۔ کبھی کسی نے یہ کیبنٹ کے اجلاس میں پوچھا ہے کہ وہ بھائی وزیر ہوا بازی، یہ جو تم نے 40% کہا کہ پائلٹ ہمارے جعلی ہیں، پوری دنیا میں پائلٹس کو جن ایئر لائنز میں وہ کام کر رہے تھے پاکستانی،
उन्हें जिल्लत अमेज सलूक के साथ ये बाहर सब निकाल पूछना दिया गया। चाहिए, आई एग्री ये विद पूछना चाहिए, नहीं पूछा। लेकिन कोई वजह इससे है कि आपको- नवाज शरीफ साहब डिस्कस हुए हैं कैबिनेट मैं आ रहा हूं ना, में, इसलिए इनके जोरदार पास तरीके कुछ से है मरियम नहीं। नवाज साहिबा हुई हैं डिस्कस, कुछ है नहीं मीन्स कि इनके बहुत बड़ा पास। मसला है ये, इसलिए- सब मुल्क को कौम का बहुत बड़ा मसला है मैं सर। वो प्राइम कल मिनिस्टर, शाहिद कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर सब बैठे हैं वहां पर। बड़ी खूबसूरत बात की शाहिद खान साहब ने कि अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल रहा तो आप बता दें, हम एक फोन करेंगे, वो वापस आ जाएंगे। अगर आप एक डेट दे दें तो ये मसला हल डेट- करके वो देखिए, तमाम बात मसाइल ये पर कि तवज्जो दें जो अभी मैं आपने तो इस बात on पे board हैरान की। हूँ कि ना ये मियां नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए हैं, मैं लंबी बात इस पर नहीं करूँगा, एक शख्स हुकूमत की कस्टडी में है, तमाम तर उसके टेस्ट, उसकी रिपोर्ट्स हुकूमती कस्टडी में बनती हैं, हुकूमत की तहवील में बनती हैं। उसके बाद हुकूमती तमाम वुज़रा ये बयान देते हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें मुल्क से बाहर जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि आज वही वुज़रा किस मुंह से टीवी पे बैठ के मतलब लेकिन अगर आप बता उलूल दें, फुलूल अगर बातें अभी कर आप रहे हैं। इस प्रोग्राम पे अभी एक डेट दे दें तारिक साहब, तो कल कैबिनेट मीटिंग में देखें, चल जाएगा, किसी इसमें नेक्स्ट कैबिनेट इसका मीटिंग एक में ही हमारा जवाब है। प्रोग्राम चल जाएगा सर। आप एक ही सोचें जवाब उसकी है। इम्प्लीकेशन सोचें, एक इम्पोर्टेंस। ही जवाब है इसका, वो ये है कि पिछले अरसे में पूरी दुनिया में जो कोविड की वबा रही है, इस सिलसिले में बहुत सारे मामलात बिलखुसूस अस्पतालों के इलाज मुआवजे के जो मामलात हैं वो ताखीर का शिकार लेकिन हुए। पाकिस्तान में अब बेहतर हो ये- गए हालात, अब नहीं, तो उनको नहीं, खुशी मेरी खुशी बात वतन वापस मुकम्मल आना करने देना, चाहिए। ये तो बरतानिया से बेहतर डील किया 6 दफा रोकी हैं और बाद लोगों को समझ नहीं आती। मैं तो कह रही हूँ बेचारे डेट कहते दे होंगे दें, कि इस तारीख पर आ आप जाएंगे वो। बहुत ना मतलब परेशान हो रोकती हैं। प्राइम मिनिस्टर, ना परेशान हो कैबिनेट मिनिस्टर। एक ही जुमला मैं कहने लगा था, जैसे आपने 6 दफा रोका है कि ये डेट मियां नवाज शरीफ साहब के जो बरतानिया में मुआलिज हैं, जो उनके इलाज कर रहे हैं, वही दे सकते हैं ठीक कि है। कब वो मियां साहब को कहेंगे कि हमारी तरफ से आपको मुकम्मल इजाजत है, मजीद आपको इलाज की जरूरत नहीं, आप पाकिस्तान वापस चले ठीक- जाएं। और मियां साहब ठीक। अदालतों से जमानत लेके और अदालतों में उनके तमाम जो बीमारी की सर्टिफिकेट्स जमा करा के और उनकी इजाजत से गए हैं। कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो चोर दरवाजे से चले गए। प्राइम मिनिस्टर ने जैसे खुद कहा जगजीत था सिंह बहुत साहब बीमार है, गए। हमें जानने देना चाहिए उनको। ससी पुलेजो साहब ने हमारे साथ आना था, बट अभी हमारे साथ आजिज धामरा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस आजिज धामरा साहब। ये आपका क्या लगता है, हुकूमत कामयाब हो जाएगी इस बड़े मुश्किल मरहले में? आज उस पर डिस्कशन हुई है कैबिनेट के अंदर, बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार किया प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने। इतना बड़ा मसला हल कर लेगी गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का? देखिए, मेरे ख्याल में फरिया, जब भी ये हुकूमत अवाम को बताने के लिए कुछ कासर होती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, तो ये डाइवर्ट कर देते हैं अपोजिशन की तरफ गाड़ी को। और अब भी नवाज शरीफ साहब का इशू उठा के ये उन जो तमाम सवालात हैं कौम के, ये उनके जवाब देने से तो कासिर रहे। अब उल्टा इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए कोशिश की है ताकि आप हम सारे टॉक शो सिर्फ इस बात पे बहस करें, इनसे ये ना पूछें कि जो आपने कमीशन बना के ढोल बजाए कि जी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि किसी हुक्मरान ने एक कमीशन बनाई अपने चोरों के लिए, वरना कमीशनें तो बहुत बनती रही हैं, मगर इन्होंने कमीशन बनाई और कमीशन ने 2-4 नाम तो फिक्स कर दिए ना। उस 2-4 नाम में से कुछ तो काबीना में एक कुर्सी से उठा के दूसरी अगली कुर्सी पे बिठा दिए गए और कुछ जो मेन नाम था वो चला गया आपका लंदन। अच्छा, उनकी वापसी की डेट मांगते रहे हम कि अगर ये सवाल उठता है पीएम साहब की जनब से कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, तो फिर पाकिस्तानी कौम और इनके अपने हमदर्द पूछते हैं कि जो आपके घर के ऊपर इल्जाम है वो कैसे वापस आएंगे। तो उन्होंने फिर ये डाइवर्ट कर दिया और कहा कि उन जैसा कॉम्पिटेंट बंदा तो कोई और है नहीं। तो इसलिए बताएं कि जनाब आली, ये जो गैस महंगी हुई, ये जो पेट्रोल महंगा हुआ, ये आटे चोर, ये चीनी चोर, ये जो आपके डॉलर की उड़ान, ये सारी चीजें किस तरह होंगी? परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। 2 साल के बाद आपको फिर भी वही उसी चौराहे से गुजर रही है ये हुकूमत कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना चाहिए। जी जनाब, वो आएंगे, आप अपनी कोशिशें जारी रखें, 1 महीने में आ जाएं, 2 महीने में आ जाएं, 3 महीने में आ जाएं। तब तक आपने क्या किया? आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है? उसका कोई जवाब नहीं है। क्या अपोजिशन के सिर्फ एपीसी बुलाने का इंतजार है कि जब एपीसी बुलाएंगे तब ये पाकिस्तानी एंड वेलकम बैक। कवच आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बार बार हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का ऐलान कर रही है। शेख रशीद साहब की बात अगर मैं कोट कर दूं, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इसहाक डार और सलमान शहबाज को वापस नहीं ला सकी तो फिर नवाज शरीफ साहब को आप कैसे लेकर आएंगे वापस?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फरिया। मेरी एब्सेंस का फ़ायदा उठाते हुए तारिक फजल चौधरी साहब ने लगता है काफ़ी चार्ज शीट लगाई है, मैं अंदाज़न जवाब दे देती हूँ। देखिए, जहाँ तक बात है शेख रशीद साहब की, मुझे हैरत है इस किस्म की स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो पाकिस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हुए और अपनी सज़ा काट रहे थे जेल में, और जेल में से उन्होंने प्ली की, 4 हफ्ते की उनकी सज़ा मुअत्तल की गई, उनको एक स्पेशल कंडीशनल अप्रूवल दी गई कि वो जाके अपना इलाज करा लें, क्योंकि उनकी पार्टी और उनके फैमिली ये कह रही थी कि जिस किस्म का इलाज या जो बीमारी इनको है उसका इलाज पाकिस्तान में इनके दौरे हुकूमत में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ और ना अभी तक आया। आपने उनकी फैमिली की रिक्वेस्ट पे नहीं किया, इतनी मोहब्बत नहीं आप उनकी फैमिली से। यू मेड योर ओन असेसमेंट एज गवर्नमेंट, यू आर रिस्पांसिबल फॉर सेंडिंग। लेट मी गिव माय आंसर। प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अस डेफिनेटली कि वो शदीद का मार है। नहीं, आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है, वो शदीद। लेट्स नॉट फॉरगेट जो हुआ है। मुझे एक एक चीज याद है एंड लेट मी कोट इट। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उनकी फैमिली की तरफ से ये एलिगेशंस लगाए गए कि नवाज शरीफ साहब को जहर दे दिया गया है नैब की कस्टडी में और उनकी जान को खतरा है। गलत एलिगेशन तो डर किस बात का? मुझे जरा बात तो पूरी करने दें। राइट, एक दफा मुझे अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करने दें, फिर आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन भी करें। उसके बाद ये बयान दिया गया कि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ वफात पा जाते हैं, जो मरियम साहिबा ने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो उनकी FIR कटेगी इमरान खान साहब पे। उसके बाद अदालत ने भी इस किस्म की डिमांड की कि आप गारंटी दे दें कि इनको यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर जिन रिपोर्ट्स की बात हुई कि जनाब उनके प्लेटलेट्स इतने हैं, उनके प्लेटलेट्स इतने, वो आप वो उठाइए, वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो चलती थी, मरियम औरंगज़ेब की आप ट्वीट्स देखें, मरियम औरंगज़ेब के बयान देखें, मरियम नवाज शरीफ के बयान देखें, वो जो बाहर बैठे हैं दोनों भाई, उनके बयान देखें, और वो सारा सिनेरियो डॉक्टर फैसल सुल्तान के असेसमेंट देखें। फैसल सुल्तान ने, मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने एक सेकंड, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर फैसल साहब ने उनकी प्रॉपर असेसमेंट नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ आके जो रिपोर्ट्स उन तक पहुंची थी उस पे अपना उन्होंने एनालिसिस दिया। उनको भेजा किस लिए था? ट्रीटमेंट के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों भेजा? ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा था। बिकॉज़ उन्होंने कहा कि मैं श्योर होना चाहता हूं कि वो बीमार है। देखिए, मुझे ये बताइए कि क्या हमारा दिल कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब बाहर से सैर कराएं जब वो जेल में थे? मैम, बादर नख्वास्ता भेजा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, रिस्पांसिबल हमने भेजा, हम समझते थे उनको जाना आप उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड्स मैं सुनवा देती हूं। कोई आप पर नहीं, हमें कोई मजबूरी नहीं थी, हमारे पे कोई जबरदस्ती नहीं थी। मुझे सिर्फ बात कंप्लीट करने दे, आपको बयानात सुनवाती हूँ। इमरान खान की क्या हैसियत है, वो कैसे नवाज शरीफ को रोक सकता है? हम तो अदालत से जाके रुजू करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, हमने अदालत में जाके जमा कराया, अदालत हमें रिलीफ दे रही है। अदालत ने ऑर्डर किया कि इनका ECL से नाम निकाल दिया जाए। जब कैबिनेट ने कहा 7.5 अरब के बॉन्ड लगाएं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, अदालत ने कहा है कि आप जमानत जमा कराएं। जमानती बयान 50 रुपए की स्टैम्प पेपर पे दिया, शहबाज शरीफ साहब ने गारंटर बने, और उसके बाद इन सब ने मिलकर बयान दिया कि हमें इन्होंने थोड़ी हुकूमत ने भेजा, हम तो अदालत से रिलीफ लेकर जा रहे हैं। तो ऑन रिकॉर्ड्स करेक्ट करना चाहिए। और एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं जिनका नाम है आमिर मीर साहब, मैं उनकी भी कोट्स आपको सुना लेते हैं। रिस्पांसिबिलिटी ली उनकी शहबाज शरीफ साहब ने। योर डिसीजन ऑन मीडिया की इतनी ताकत है कि आपको प्रेशराइज कर सकता है। मैंने सिर्फ आपको बताया, मीर साहब स्टेटमेंट बता रही हूं, रिकॉर्ड डिसीजन आपका था, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जो भी वजूहात थी, डिसीजन आपका था। अदालत ने उसके बाद कहा कि 4 हफ्ते के बाद पंजाब हुकूमत यानी कि काबीना डिसीजन लेगी। अब आ जाए अगला स्टेप। मैं रोज सवाल करती थी कि वाकई बीमार हैं, भेज देंगे। PMLN से गालियां पड़ती थी, लेकिन आप लोग कहते थे बहुत बीमार हैं वो, हमें भेजना है उनको। मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठी थी, इमरान रियाज खान ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लॉन्च की थी, एंड आई स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड इट, एंड आई वाज द वन, आज ओपन बता रही हूँ, जो कभी इस हक में नहीं थे कि नवाज शरीफ को भेजना चाहिए। लेकिन जिस वक्त उनकी रिपोर्ट्स आई, जो उनके ब्लड टेस्ट आए, उसके मुताबिक वो बहुत बीमार थे और करीबुल मर। तो फिर आप उन पे यकीन कर लेना। अब ये मुआवजा हुआ, फिर एक मुआवजा हुआ, अगली बात सुन लेना। फिर एक मुआवजा हुआ, फिर हमने देखा उनको, वो गए वहाँ की आबोहवा से जाके, उनको बड़ी बेहतरी आई। अब वो ठीक है, अब उनका वो हार्ट का भी प्रोसीजर कैंसिल हो गया, कोविड-19 भी उन्होंने माशाल्लाह सर्वाइव किया, बड़ा अच्छा सर्वाइव किया, और वो अब भले चंगे फेरे हैं। अब इस मुल्क की अदालतों से वो एक सजा याफ्ता है, और इस मुल्क की अदालत की सज़ा उन्होंने सिर्फ रिलीफ मुअत्तल इसलिए कराया था कि वो अपनी इलाज करा सके।
آپ اپنے پاکستان کے باقی ہر شخص کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر کوئی طاقتور ہے, اگر کوئی حکمران رہا ہے اس ملک میں, کوئی سسٹم اس کے لیے کام نہیں ٹھیک ہے, لیکن علاج ڈیلے ہو گیا, علاج ڈیلے نہیں ہوا, علاج ہوا ہی نہیں, اور کوئی رپورٹس نہیں آئی. اب کیونکہ عدالت نے جن کو آرڈر کیا تھا انہوں نے منع کر دیا کہ ہم انہیں مزید کنسیشن نہیں دے رہے. اگلی بات سن لیجئے جو عاجز دھامڑا صاحب کہہ رہے تھے. عاجز دھامڑا صاحب بڑے اچھے ہمارے کلیگ ہیں, ان کے منہ سے پرفارمنس کی بات کرنا بہت برا لگ رہا ہے, اور وہ بھی سندھ سے بیٹھ کے, جہاں اس وقت جو میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں والی بات ہو رہی ہے. جس وقت کراچی میں جا کے فیڈرل گورنمنٹ کوئی کام کرنا چاہتی ہے, ان کے ساری 18ویں ترمیم کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اس کے اوپر آنچ آ جاتی ہے. ان کی ساری کابینہ سمیت بلاول کے جو ان کے چیئرمین ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کی تو نیت خراب ہے, یہ تو ہمارے سے آ کے حکومت ہماری گرانا چاہتے ہیں, گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ, ان دو کی جواب دینے نا. اب آپ نے نواز شریف اور وہ ادھر پیپلز پارٹی دونوں بٹھائے ہوئے ہیں, تو مجھے اب ذرا اس کا جواب دینے دیں. 12 سال ہو گئے اس شہر کو, اس صوبے کو ڈبونے کی سارا کریڈٹ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کو اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ 12 سالوں سے کنٹینیوسلی سندھ کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے, جس میں 18ویں ترمیم بھی ساتھ شامل ہے. تو آپ جناب علی نظام بہتر کرنے میں ناکام ہوئے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کیا, تو خدا کا واسطہ ہے دوسروں پہ الزام تراشی مت کریں. ڈاکٹر صاحب علاج کے لیے گئے تھے نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے انہیں بھیجا تھا, وہ خود بھی انسان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ایک وعدہ ہوتی ہے, وعدہ کیپنگ ہوتی ہے, پرومس کیپنگ ہوتی ہے. سو اب گئے ہیں علاج کے لیے, تو اب وہ ایگزیکٹ ڈیٹ ہی بتا دیں کہ میں اس ڈیٹ پر آ جاؤں گا تاکہ حکومت کو بات یہ ہے کہ سکون ہو. آپ نے مختلف موقعوں پہ جو کنول شوزب صاحبہ نے سٹیٹمنٹس دیں انہیں آپ نے کریکٹ کیا. میں بسات دن کے احترام یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی یا فیکٹس کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی, لیکن میں یہ اس طرح کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے انہیں کریکٹ کرنے کی کوشش کی. اور اتنی بڑی موٹی یہ فائل سوری جو لے کے آئی ہوئی ہیں جو پارٹی کی طرف سے یہ آپ کی NRO پلس ہے, آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں, دیا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے بولنا ہے. میڈم آپ ذرا مجھے بات یہ اپوزیشن کے ڈاکیومنٹ ہے, دیے ہوئے NRO پلس کی کاپی ہے. ساری جھوٹی باتیں سنی, مجھے بھی تھوڑا بات کرنی ہے. یہ تو آپ کی دی ہوئی ہے جناب. اب گزارش یہ ہے کہ اب انہیں 34 امینڈمنٹس اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ان کے وزیر پریس کانفرنس کرتے رہے, یاسمین راشد صاحبہ کرتی رہیں, جو ڈاکٹر فیصل کی آپ نے بات کی وہ ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں ابھی, انہوں نے کی پریس کانفرنس, انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو آگے ویریفائی کیا کہ میاں نواز شریف صاحب اور آپ ساتھ تھے. پلیٹلیٹس جو ہیں جی میں ادھر ہی تھا, جرنلسٹ کو خان صاحب نے خود بتائی. ہاں لیکن کیا بتایا گیا تھا؟ اچھا جو پلیٹلیٹس کی جو تعداد, میڈم ذرا سنیں نا, اب یہی ہوتا ہے, میں بات آپ بھی نہیں کر سکیں گی 1 منٹ. نہیں جب پلیٹلیٹس زیادہ ہوتے رہے, آپ یہ بتا دیں نواز شریف بیمار نہیں تھے جب وہ گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے کہا بیمار ہے. اچھا ہم نے کہا, اور آپ نے کہا کہ وہ بیمار نہیں ہے, تو ہم نے تو کہنا ہی تھا نا. جب بھائی آپ کی کسٹڈی میں ہے, یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا کنسنسس تھا کہ جب وہ گئے وہ جاتی عمرہ میں ICU میں تھے یا نہیں تھے. میں اس طرح نہیں بات کر سکتا. لیکن ایک بات چلے, جاتی عمرہ ICU میں تھے یا نہیں تھے. آپ ان سے پہلے ان سے بات کر لیں. اوکے, آپ ہی بات مجھ سے سوال پوچھ رہی تھی نا, میں آپ سے نہیں سوال پوچھ رہی نا, آپ نے پوری تقریر کی, جو بھی آپ نے کہا انڈ شنڈ کی, مجھے بات کرنے دیں, مکمل کرنے دیں. کراس کوشچن تو کری تھی میں. نہیں کراس کوشچن کی بات نہیں ہے, بات بڑی سمپل سی ہے. لوگ بیچارے بیٹھے ہیں ٹی وی پہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بات ان کے مسئلے پہ ہو رہی ہے. ٹھیک, کوئی آٹے پہ, چینی پہ, دال پہ, سبزی پہ, فروٹ پہ, بجلی, گیس, پیٹرول, ڈیزل پہ کمی پہ بات ہو رہی ہے. کب آئیں گے واپس تاکہ ہم آٹے خود آپ نے اپنے تمام ڈاکٹروں کی لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کرا کے آپ نے ان کو بھیجا. ابھی کیا عدالتوں نے رپورٹس مانگی, آپ سے مانگی, آپ نے توثیق کی, وہ گئے. یہ وہی نواز شریف ہے کہ جب انہیں سزا ہو چکی تھی پاکستان کی عدالتوں سے تو وہ واپس آئے سیدھا جیل جانے کے لیے. جی ویری گڈ, بھاگنے والے نہیں ہیں. ٹھیک, وہ نااہل ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو کوئی روشنی ڈالے. وہ نااہل ہو چکے تھے, وہ الیکشن لڑنے نہیں آئے تھے, وہ جیل جانے کے لیے آئے تھے, پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے آئے تھے. اب بھی میں حیران ہوں کہ کیا یہ ان کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں. گھر سے باہر نکلتے ہیں, ان کی واک کرتے ہوئے تصویر آ جاتی ہے, انہیں آگ لگ جاتی ہے. اب ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ نے ایز ڈاکٹر مجھے سمجھاتا وہ کتنے بیمار ہیں, میں وہ سٹیٹمنٹ نکال لیتی ہوں آپ کی. تاریخ جو ہے اب ایک بات کو 10 دفعہ دہرانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سے نواز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب انہیں کوئی بیماری نہ ہو, بڑی لمبی عمر ان کو اللہ دے, لیکن اس وقت ان کی سٹیٹس کیا بتائیں نا کیا ہے ایز ڈاکٹر بتائیں. ہاؤ یو اس پارٹی ممبر, اس سوال سے آگے آج اب نہیں جانا چاہتی. آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے. میں ان کا علاج نہیں کر رہا
आपका दिल नहीं उनका क्या मैं इलाज पूछूं? लंदन में डॉक्टर कर रहा है। जब उसने ये कहा कि आप इस काबिल हैं कि आप पाकिस्तान एज ए जाएं, डॉक्टर बताएं, एज ए आपको डॉक्टर मज़ीद बताएं, एज ए ट्रीटमेंट की डॉक्टर ज़रूरत नहीं बताएं, है। वो तस्वीर देख के आपको क्या लगा, कैसी तबीयत है? देखिए बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी कि वो चल नहीं सकते थे, अस्तगफिरुल्लाह, बेड रिटर्न तो नहीं थे। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे भी चल जाहिर कर ही गए है हैं। उठ के बैठते थे, चल के गए आपके सामने, जहाज में चल के जहाज में गए चलता था। लेकिन अब जब इतने अरसे में अस्पताल बंद रहे हैं कोविड की वो वजह ठीक से हो उनकी गए। ट्रीटमेंट नहीं हो सकी। डॉक्टर्स ने बताना है कि कब वो आएंगे, शिफा अल्लाह के हाथ में। डॉक्टर्स ने बताना है कब वो वापस आएंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने पाकिस्तान के सारे मसले हल कर लिए हैं, ठीक है। इनसे ये पूछें आप कि आपके वजीर नवाज की शरीफ पाकिस्तान चवल का मारने सबसे की बड़ा वजह से मसला है। वजीर खारजा कैबिनेट में की डिस्कस हुआ सबसे है बड़ा मसला भाई, नवाज शरीफ इनसे है। ये हम पूछें देखना चाहते हैं जिसने इस मुल्क का बड़ा आपके- गलत किया वो मुल्क की जेलों के पीछे हो। मैं जेल वहाँ वो आ कौंसलर जाएंगे, की तरह फिरे। लेकिन आप कमल से ये पूछें कि आपके वजीर खारजा की चवल की वजह से आपके आर्मी चीफ को जाके दूसरे मुल्क को मनाना पड़ा है, उसका जवाब दें। पाकिस्तान के लोग आपसे ये जानना चाहते हैं, यही इस्तेमाल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपका वजीर नहीं एक मिनट, आपका वजीर 35 साल कह रहा है कि पिछले 35 सालों को वाजिबुल कत्ल है, आप लोग ये आपका ये वजीर गालियां फतवे दे रहा देने का है, काम वफाकी इन्हीं का ही वजीर है। वो इनका बहुत वजीर गलत फतवे कर दे रहे रहा हैं, है। लेकिन आप आपसे नहीं पूछ डॉक्टर साहब आप सकते। ऐसे इस वक्त लोगों का मसला ये है, we don't expect you to say a word like that. We मतलब don't. you The expect two them ladies to do whatever they want to चलिए, say. आप ये You don't समझ expect us to say We anything. don't expect you कि आप गाली देंगे. नहीं, We मैं कोई don't. गाली नहीं We दी। don't expect मुझे you. तो शर्म आती है इस बात से एक बुरा लफ्ज़ है। कि आपका वजीर इंतहाई इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट दे, उसे ये पूछने वर्ड वाला कोई वापस नहीं ले है। ले, मैं तो कह भी नहीं सकती, मैंने सुना भी नहीं। मुझे वो आप वापस ले देखें, लेना। हमारे भी जज्बात हैं। आपने सिर्फ हमारे वर्ड वापस ले पूरी लेना, आप दुनिया बुरा भला कह दे, में वर्ड पायलट्स वापस को ले आपने रुस्वा किया, प्लीज किसी ने वर्ड वजीर वापस से ले ले, पूछा, कैमरा देख रहा होगा, वर्ड वापस ले ले। मैं वर्ड में क्या वापस It's लूं? not nice. ये गलत बात बुरी है। बात नहीं है। आप मुझे ये कह दें, आप मुझे ये कह दें वो बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं था, आप कह दें गैर। एंड वेलकम बैक। कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी ने कौमी असम्बली के इजलास में कुछ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर पीटीआई ने एहतजाज किया। आज कैबिनेट के अरकान ने इस बात पर भी एहतजाज किया। तो जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की वापसी लाने की बात हुई वहाँ पर यह बात भी हुई। आजिज धामरा साहब, ये सियासी माहौल आपको लग रहा है कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है सियासी तौर पर? ये तो मेडिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्कस कर रहे हैं, बट सियासी तौर पे क्या मियां नवाज शरीफ को फायदा होगा वापस आने का या नुकसान होगा? जी, कल इनकी सिंध असेंबली में शर्मिला फारूकी ने भी एक बहुत गलत रेजोल्यूशन पेश की और मैं उस पर प्रोटेस्ट करती हूँ। गलत इल्जाम तराशी की और वो एक हमारे दो जो सोशल मीडिया के ऑफिशियल है, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनके ऊपर हरासमेंट के इल्जाम इस पे शर्मिला फारूकी साहबा की आज मुझे कॉल आई थी क्योंकि कल मेरे प्रोग्राम में श्री मज़ाई साहबा ने भी ये बात की है। अगर स्टेटमेंट है प्रोड्यूसर साहब के पास तो हम चला दें। प्रोड्यूसर साहब जरा बताइएगा। ये भी चलाएं और कल की असेंबली की कार्रवाई भी चलाएं कि जो बयान आप शायद खाकान अब्बासी से मंसूब कर रही हैं वो क्यों उन्होंने कही। आपने कहा ना काबिल एतराज है, मैं मान लेता हूं भाई स्पीकर के ऊपर अटैक कर दिया, उनको गालियां देनी शुरू कर दी, उनको जाके हरासमेंट की, पीछे नारे मारे गए, वो तकरीर कर रहा है और पीछे नारे मारे जाते हैं चोर चोर। उसने कहा जो चोर कह रहा है उसका बाप चोर है। मुझे बताएं आप उसको गाली देंगे और जवाब में क्या कहे? वो बाद में हुआ, वो क्या कहे जवाब में? उससे पहले एक शख्स तकरीर कर रहा है, पीछे अब नारे मारे चोर चोर, उसने कहा जो चोर चोर कर रहा है उसका बाप चोर है। मुझे बताएं आप क्या करें? अमेंडमेंट्स, ये मैं अमेंडमेंट्स लेकर आई हूँ, ये अमेंडमेंट्स जब पढ़ी जा रही थी, एक मिनट तारिक फजल साहब, नहीं टॉपिक चेंज नहीं हो रहा। अमेंडमेंट्स के दौरान कभी आज तक 72 इयर्स में नेशनल असेंबली में लोगों ने बैठ खड़े होकर स्पीचेस नहीं की, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कभी मांगा नहीं। स्पीकर साहब ने कहा, मैं रूल्स पे बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, स्पीकर साहब ने उनको रोका, उन्होंने पहले रोका कि एक मिनट देखें, मुझे बात कर रहे थे ना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कहा कि इस वक्त पॉइंट ऑफ ऑर्डर में नहीं ले सकता क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के ये इधर इसमें उनकी कॉलिंग अटेंशन भी थी और उन्होंने अमेंडमेंट भी पेश की थी। उन्होंने कहा नहीं, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं अपनी बात कर चुका हूँ। उन्होंने आगे से क्यों कहा? नहीं, मेरी बात मेरी बात माने दे, आप लोग असेंबली में मौजूद थी, मेरी बात सुन लीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे अभी के अभी फ्लोर चाहिए और फिर उनकी पूरी पार्टी चली गई और स्पीकर के ऊपर जाके उन्होंने शाउट किया। उसके बाद हमने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया। क्यों नहीं जब लोग शोर कर रहे थे? भाई हमने खड़े होकर फिर प्रोटेस्ट किया कि अब ये नहीं बोल सकते, ये पहले माफी मांगेंगे, अपने अल्फाज वापस लेंगे। गवर्नमेंट इज
is not letting opposition talk. No, they were Yes. speaking. नहीं करने ख्वाजा देते। आसिफ स्पीच कर रहे थे उस पे उन्होंने कहा कि आप मुझे भी स्पीच करने दें, आप Topic change अमेंडमेंट के कर बीच में कैसे स्पीच कर सकते हैं? और फिर उनको जाके क्या बकवास बंद करो और इस किस्म के अल्फाज नहीं, आप नहीं, स्पीकर नहीं, को नहीं, कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड कैबिनेट में है। ये बिल्कुल नहीं डिस्कस कहा। हुआ। आप इनकी तकरीर चलाइए जो आप मुझे ये फॉरेन बताएं, मिनिस्टर ने फिर उठ के सिर्फ कहा एक सवाल कि का आप जवाब अपने दे दें। अल्फाज वापस लें, आप एक कि रिस्पॉन्सिबल हाउस का शख्स हैं, कस्टोडियन कौन है? आप हैं या स्पीकर है? अगर स्पीकर को ये लगे कि स्पीकर मेरी ने तस्दीक कहा, हो रही है, उन्होंने he बिल्कुल has कहा, got you all the should rights have former- कि वो उस मेंबर के खिलाफ कहा कार्रवाई उन्होंने, करे। former- आप तो नहीं former स्पीकर को press- रेस्क्यू आप कर प्राइम सकते। मिनिस्टर हैं, आपको ये You ज़ेद cannot नहीं do देता that. कि आप असेंबली में इस तरह का माहौल अगर create अगर प्रोड्यूसर साहब ये निकाल सके निकालें, statement दिखाएं जो clips। जो असेंबली में हुआ, वी शुड रियली सी दैट। लेकिन धामरा साहब, कल शीरी मजाई साहब ने भी ये बात किया। लेट मी टेल द ऑडियंस कि मुझे शर्मिला फारूकी साहब का खुद फोन आया था, शी वांट्स टू कमेंट ऑन दैट, बट अभी आज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे पूछ लेते हैं। सर, कल शीरी मजाई साहब ये कही थी कि वो बात हुई नहीं मीटिंग में जिसका जिक्र किया उन्होंने, आज ये कह रही हैं कंवल जोसेफ साहिबा। योर कमेंट्स प्लीज। देखें फरिया, पहली बात तो ये है कि ये जो पीटीआई खबरनामा पीटीआई है, इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है, इनको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर भी नॉन इश्यूज को इश्यूज करके आजिज दामला कौम साहब, की सारी तवज्जो आप जो है वो हटा अपने दी जाए। पॉलिटिशियन और होने पे दूसरी- खुद इस वक्त और लाइन दूसरी लगा रही बात, हैं। टास्क फोर्स में आके भी 5 आप हलकों इसको से आपके इलेक्ट हुए हुए पूरी वजीर आजम को कौम आप ये सिलेक्टेड रवैया कह देख रही के है अपने इनका, चेयरमैन कि के इनको लिए झूठ और पे अपनी झूठ पूरी बोलना है, पार्टी के लिए मुनाफिक रास्ता से खोलते हैं कि मुनाफिक आपको करनी है। सारे जो है वो कंडेम करें। खुदा ये- का वास्ता है कि आप डेमोक्रेसी का इस मुल्क में आगे जमहूरियत आपने फैमिली लिमिटेड चलाइए, मत आप मजाक बनाइए। ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट अवाम बिल्कुल को ये सही नहीं है। बता रही कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। हम आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, आप सिंध असेंबली के मेंबर हैं, बताइए नहीं है। देखें इस आप तरह ये बताएं सिंध को रिप्रेजेंट करते 12 सालों की परफॉर्मेंस वर्सेस 2 इयर्स कर लें, हम बताते हैं आपको। जाती चैनल तो आप नहीं है ना। रेस्क्यू 1112 इस वक्त आपकी पूरा कराची जो है वो हुकूमत पाकिस्तान फेडरल से मांग ओके, रहा है। धामरा साहब को सुन लें जरा कंवल साहब। धामरा साहब, नहीं, ये शर्मिला this is फारूकी not साहिबा on. पे नहीं फरिया, अगर ये इस किस्म के हल्का बात हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे जो इस पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आई वोंट लेट हिम स्पीक। धामरा साहब सिलेक्टेड का लफ्ज आप उसको प्लीज ओमिट ये करें। कौन सी बात इसको इन्होंने वापस मजाक ले लें। बनाया हुआ है? एक डमी चेयरमैन बिठाया हुआ और बातें करते हैं। करिए, आप उनसे करिए, बट लेट्स नॉट से दैट। धामरा साहब, लेट्स ओमिट देखें- दैट। अगर आप इजाजत देखें, दें अभी मैं तो बात हम कर इसको रहा हूं। हज़फ कर वैसे देते जब हैं। बिलावल साहब ने अभी सिलेक्टेड कहा हुकूमत था से- पार्लियामेंट हुकूमत से में, इजाजत तो इमरान खान लेने साहब ने की उसको बात डेस्क कर- बुझाए थे, आपको पता है? हुकूमत से बुझाए थे? हुकूमत से उनको डेस्क इजाजत बुझाए लेने थे। की बात- उन्होंने माइंड ही नहीं किया, पाकिस्तान उन्होंने माइंड नहीं किया इस वर्ड को, नहीं माइंड किया था। लेकिन हमारी रिस्पेक्ट है ना, हमारी अपनी पॉलिटिशियंस की इंसल्ट होती है जब हम ऐसी बातें करते हैं। फरिया, अगर ये प्रोग्राम बट आप चलिए कर ठीक रही है। हैं, वो फरिया, ये प्रोग्राम आप कर रही जी हैं। आजिज धामरा साहब, बंदों पे चढ़ के आए प्लीज लेट हिम टॉक। वो दूर से आ रहे हैं। एक तो कराची की सूरत हाल पे जरूर बताएं, फिर कल शर्मिला फारूकी साहिबा की रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन उठाया है कंवल साहब ने। जी पानी में तो देखिए नहीं खड़े फरिया, होते। पहले तो ये कौम को बताएं कि ये प्रोग्राम होस्ट आप कर रही हैं या पीटीआई कर रही है। सर, आप बोल लेंगे अगर अपनी बात चले। लेट्स नॉट आजिज दामरा साहब, आप पानी में तो नहीं खड़े होके प्रोग्राम कर रहे हैं जिस तरह बाकी देखिए, आवाम कंवल प्लीज लेट हिम टॉक प्लीज। जी देखिए, आजिज धामरा पहली साहब, बात, मुझे गुस्से का एहसास है, इनके गुस्से का एहसास है, क्योंकि इनको परमिशन इसलिए मिलती है टॉक शो में जाने के लिए कि आपको इतना शोर करना है कि आपसे कोई परफॉर्मेंस के बारे में सवाल ही ना करें। पार्लियामेंट और टॉक शो में ये जो आपके खबरनामा मुंह से पीटीआई है ना, performance वाला लफ्ज मुझे अच्छा ज़ाती नहीं तौर लगता। पर कंवल प्लीज लेट हिम टॉक। नहीं नहीं, ये मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे प्लीज लेट हिम टॉक। इनको ये पता है कि मैं क्यों आई आप मैं अपने आवाम की बारे में नुमाइंदा हूं, बोलिए, आवाम की ये तो तर्जुमान। बात आप अपनी बात करें। ये तो डन हो गया कि इनके पास बताने के लिए कुछ आप नहीं है। शर्मिला चीखे फारूकी मारने की के लिए। गलत स्टेटमेंट को बताइए कि चीखे क्यों की मारने के उन्होंने अलावा झूठ फरियाद क्यों बोला किसी ने असेंबली नहीं के किया। ओके, आप एक मिनट दे दें उनको। जी धामरा साहब, आप प्लीज बात कर लीजिए। हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि कल रेजोल्यूशन में क्यों इतराज उठा रही है पीटीआई। देखें मैं अगेन कह रहा हूं कि इनकी जो चीखें हैं ना, हमें एहसास है कि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और आपको परफॉर्मेंस चीखें तो सुनाई दे। एंड वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कहा कि शर्मिला फारूकी साहबा खुद इस पे स्टेटमेंट देना चाहती हैं। वी विल ट्राई टू गेट ऑन द शो, लेकिन क्योंकि कल भी मेरे शो में ये बात हुई है, आज कंवल ने भी की है, सो आज धामरा साहब आपकी बात अब हम मुकम्मल सुनेंगे। कंवल साहबा को मैंने कहा बीच में नहीं बोलेंगी, सो प्लीज स्टार्ट नाउ। देखें, पहले तो शर्मिला आपके बकौल के खुद उन्होंने कॉल भी की थी और मैंने उसकी स्टेटमेंट नहीं सुनी। उसकी स्टेटमेंट उनसे आप जरूर चलिए, ठीक है, पूरी कौम ठीक पे है। सुनाएं। और दूसरी बात,
दूसरी बात, मैं अपने अल्फाज वापस लेना चाहता हूँ। मेरी बहन ने बुरा मान लिया था सिलेक्टेड लफ्ज को, मैं वापस लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे ठीक है ना कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मगर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो परफॉर्मेंस पे सिंध हुकूमत पे इन्होंने बात की थी, तो 8 साल से जहां पर आपकी हुकूमत है, एक कठपुतली ने एक ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह किया जो अनकम्प्लीट था, सिलेक्टेड पोर्शन का इफ्तिताह कर दिया, आए दिन बसें आपस में टकरा रही हैं। तो एक ही तो आपके पास वो प्रोजेक्ट था ना जो जल्दबाजी में आपने इफ्तिताह कराया कठपुतली से। अब तो ये सेम की बजाय परफॉर्मेंस की क्या KP पे बात चले करते गए। हैं? आप कठपुतली हो क्या गए। बात करेंगी परफॉर्मेंस पे? इसलिए लंदन जाने वाला एक दूसरा शख्स भी है। आपके मुंह से कौम सुनना चाहती है कि नवाज शरीफ साहब के साथ साथ उस शख्स को भी वापस आना चाहिए। मुबारक हो आजिज धामरा साहब, आपने तो जॉइंट ऑपोजिशन का हक अदा कर दिया माशाल्लाह। आप तो मुस्लिम लीग नून के ज्यादा अच्छे स्पोक्सपर्सन हैं। नाराज हो जाएंगे अगर आपने तरीन की वापसी की बात की, तो आपको एक बंदा बुलाना चाहिए ऑपोजिशन से। जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है, इस वक्त उन पे कोई केस नहीं चल रहा। जिस दिन उनको कोर्ट्स बुलाएंगे वो अगर ना आए तो वो भगोड़े होंगे। ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट केस है। लेकिन आजिज धामरा साहब, आपने जॉइंट ऑपोजिशन होने का हक अदा किया, वेरी गुड। आपने कौम के लिए क्या किया? और आप अपने सिलेक्टेड जो नौमौलूद, आपके सिलेक्टेड नहीं तो अभी कठपुतली किसको कहा इन्होंने, किसको कहा इन्होंने? अच्छा, लेट मी कम डॉक्टर साहब, इनसे के अपने जो नौमौलूद चेयरमैन है पर्ची वाले, उनको जरा कराची दिखा दें। वहाँ ज्यादा पानी भी आ गया और ज्यादा लोग डूब भी रहे हैं। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फिर जवाब ले लीजिए। वहाँ पर तो बनी गाला में एक माफिया बैठी हुई है। चले धामरा साहब, आपने एक मुतालबा किया है, ठीक बात है, मुतालबा तो आपको बिलावल हाउस तो बनाया ही माफिया नहीं है। माफिया को नहीं पता।